All right, so here we go, guys. We are live with the general awareness section, right? जीके सेक्शन का एनालिसिस करेंगे अब हम सब मिलकर साथ में, ठीक है जी। चलिए, ऑलराइट। तो दोस्तों सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो अब मेरे पास जो सेट था उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर्स हैं, बट डिटेल में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है जीके का, तो वो भी अपन करने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स क्विकली बिगिन। देवश्री, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या दोस्तों क्लियर? एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा बेटा, प्लीज प्रेस रिफ्रेश। Alright, so let's start off with general awareness. Okay, 150 questions there were, as we are all aware. ALET exam structure, we just talked about this. Difficulty level also we have discussed in length. 30 questions of current affairs and GK. Let's begin with the questions. Alright, the first question. Which of the following countries is not a member of SARC? हमें पता है भाई, अफगानिस्तान मेंबर है, भूटान मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, कंबोडिया जो है is not a member of SARC. So the right answer 51st is the answer C. Alright, Dr. APJ Abdul Kalam, known as the Missile Man of India, was instrumental in the creation of which of these offices? He was also the first person to hold this office. Look at the options. The principal scientific advisor of the government of India. We need to not look any further because A is absolutely the right answer here. Which of the following countries have neither signed nor ratified the Rome Statute? Rome Statute. Now guys, numerous times I have been sharing this with you that whenever such kind of questions are asked where option D is available, all of the above, right, 80 to 90% of the times that is the right answer, and that's the case here as well, right? 53rd question, D is the right answer. That is all India, USA, Russia and Azerbaijan, all of these countries have neither signed nor ratified the Rome Statute. All right, the next question is here in front of us. आ रही है सर आवाज? क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, उमर अल बशीर was the first head of state to be indicted by the International Criminal Court. अब ये बताइए आप, he was indicted by the court in relation to which of the following incidents? तो आप लोगों ने क्या मार्क किया दोस्तों, फटाफट से बताइए। What is the right answer? The right answer, देखो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो डेफिनेटली इज द राइट आंसर हियर, राइट। तो क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही वाज इंडिक्टेड फॉर द सेम, राइट, फॉर ऑफेंसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बट यहाँ पे ना 2005 के बाद से जो उनके ऑफेंसेस हैं उनकी वजह से उनको प्रोसिक्यूट किया गया, राइट, उनको इंडिक्ट किया गया। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन बी में मार्क किया हुआ है 2003 से 2008, राइट, तो इस वजह से थोड़े से डाउट्स आते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम अगर यहाँ पे लेते हैं तो द राइट आंसर हियर इज बी, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चर्चा जरूर हो सकती है, राइट। अगर हम देखें प्राइमा फेसाई 54th क्वेश्चन को तो डी भी लगता है, बट ठीक है, देखते हैं। चलिए, ऑल राइट। सो हियर अगर आपने बी मार्क किया है या डी मार्क किया है तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है। बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, अ बिग रोड ब्लॉक टुवर्ड्स कंक्लूडिंग ब्रेक्सिट वाज द फेलियर ऑफ यूके एंड यूरोपियन यूनियन टू अग्री ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू आयरलैंड, अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, थ्रू नॉर्दर्न आयरलैंड. This problem was resolved with the conclusion of Windsor Framework. Effectively, the final step in the Brexit process. ये बताइए भाई, इन स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है, ट्रू कौन सा है? That's the question here. 55th question in front of us. Okay, it is a tri-party agreement between England, Northern Ireland, and UK. यहाँ पे देखिए, the agreement proposes to establish red and green lanes for goods moving into Northern Ireland. To reduce checks and paperwork related hurdles on such goods. Absolutely right. This is the agreement does not provide for separation of goods entering into Northern Ireland from those entering Ireland. ये भी सही है.
rather ये सही नहीं है. The agreement is concluded between the UK and European Union. Now this is absolutely on the right side. So 55th question, the right answer is option B. मतलब second and the fourth statement are the right ones. चलिए next, IPL की अगर हम बात करें तो which of the following player has played for the same team since the inaugural edition? Since the inaugural edition, the right answer here is of course Virat Kohli. So Virat Kohli is the right answer. ठीक है, ये आपको याद रखना है, विराट कोहली. चलिए बढ़ते हैं आगे. NASA OSIRIS REx mission recently brought back a capsule of rocks and dust collected from, तो ये हमें पता है recent news है. The right answer here is the asteroid Bennu. Right, so asteroid Bennu, A is the right answer. चलिए, which is the longest river in India? 58th question in front of us. काफी आसान क्वेश्चन. तो ये तो है जी गंगा. अब देखिए दोस्तों, लॉन्गेस्ट पूछा है हमसे, लार्जेस्ट नहीं पूछा है. लार्जेस्ट में क्या देखा जाता है? डेप्थ कितनी है, पानी कहां ज्यादा है, वो सब चीजें देखी जाती है. लॉन्गेस्ट रिवर कहां से कहां फ्लो हो रहा है. सो गंगा इज द राइट आंसर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. राइट, सो हियर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चन सो फार वर ऑन द इजियर साइड. राइट, okay. 59th question, again a very easy question. A key India foreign policy initiative is the Act East policy. Right, Act East policy. Which of the following statement correctly captures its objective? Act East policy का objective क्या है? To promote economic cooperation, cultural ties and develop strategic relationships with countries in the Indo-Pacific region. Absolutely right. चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं, इससे भी बेहतर कुछ है क्या? Securing an active intelligence network. No, wrong. Promotes a key partnership to combat human and drug trafficking. नहीं. Promotes India as a hub of scientific education by attracting best minds of South Asia. Of course, the right answer is option A. Through sheer elimination. Right, ये तो आंसर आपके पास आ ही जाएगा. 59th question, A is the right answer. चलिए 60th question, ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. The right answer is literature. Right, again लीक्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था. ज्ञानपीठ अवार्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर आप सबने पढ़ के भी गए थे. द राइट आंसर हियर इज लिटरेचर. राइट, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हम कई बार लिख भी चुके हैं. ऑल राइट, द COP26 कॉन्फ्रेंस हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट. क्या प्राइम फोकस है? बहुत ही आसान है. अगेन, सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट. ये हमें पता है भाई, एनवायरमेंट रिलेटेड चीज है. अ ग्लोबल समिट एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. Technology conference on gaming, international trade agreement. Na. The right answer, of course, is option B here. All right. A key thrust area for Supreme Court. अब छोड़ो. Who was the first women judge of the Supreme Court? ये देखिए क्वेश्चन है. 100 बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. Right, I've been saying this numerous times to all of you that go through the previous year question papers because questions are repetitive. And that's the case here as well. आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया वापस से. जस्टिस फातिमा बीवी इज द राइट आंसर. 62C इज द राइट आंसर. जब मैंने क्लैट दिया था या एलेट दिया था तो मेरे को भी ये क्वेश्चन आया है. तो सोच सकते हो आप कितना पुराने टाइम से आ रहा है ये क्वेश्चन. ऑलराइट, व्हाट डज जीडीपी मीन? राइट, काफी आसान है. जीडीपी मेजर्स व्हाट? तो चलिए देखते हैं. ओके, टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर. फिर है टोटल मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट. रॉन्ग हो गया ये. It is a measure of income distribution inequality. Absolutely not. Broadly understood as the final value of goods and services produced within geographical boundaries of a country over a specific period of time. Absolutely right. ये देख सकते हैं आप. 63rd question, D is the right answer. Again, sheer elimination. नहीं भी पता होता, दिमाग लगा के भी आराम से हम ये निकाल सकते हैं. Okay, the Sustainable Development Goals were adopted by which of the following? ये देख सकते हो आप. Adopted by United Nations. Which of the following statements is not true? Sustainable Development Goals की अगर हम बात करें, हमने ये डिटेल में चर्चा कर रखी है, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको. राइट, तो ये आप देख सकते हैं. 65th क्वेश्चन आपके सामने. 65th है, 64 है. 64th क्वेश्चन आपके सामने है. द राइट आंसर हियर नॉट ट्रू. तो प्लान ऑफ एक्शन फॉर पीपल, प्लांट एंड प्रोस्पेरिटी. एब्सोल्युटली राइट. Development must be social, economic as well as environmental. Absolutely right. Creativity, know-how, technology, financial resources from all societies necessary to achieve the goals. Absolutely right again. Rank countries according to their economic growth and GDP data. No, of course not. Right. ये क्या है? एकदम odd बात कर दी. कहाँ sustainable development goals और कहाँ ये option?
Look at how odd this option is. So easily again can be eliminated. Next 65th question, ये रहा हमारे सामने, बताइए जरा क्या है आंसर यहाँ पे. In 1960, Stanford professor Walter Mischel conducted an experiment called the marshmallow experiment to test the connection between delayed gratification and better success later in various facets of life. The outcome of the experiment is also referred to as, so the right answer is cognitive dissonance, right? Cognitive dissonance is the right answer here. 65th question C, ये टफ था बिल्कुल, तो इसमें आप अगर आपका गलत गया है तो चिंता मत कीजिएगा, कोई बात नहीं. ऑलराइट, 66th क्वेश्चन रहा ये हमारे सामने. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स इज नॉट इनकरेक्ट. नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब हुआ दोस्तों? नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब हुआ यहां पे? इज ट्रू, राइट? नॉट इनकरेक्ट मतलब हो गया ट्रू. तो 66th क्वेश्चन ये देखिए आप, साउथ अफ्रीका इज नॉट एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स कोएलिशन. यहां पे हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. ब्लॉक वॉज स्टार्टेड एज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेटेजिकली असिस्ट यूएस, एब्सोल्युटली नॉट. ये तो भाई जैसे यूएस के पास नेटो है तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, तो ब्रिक्स तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है वेस्टर्न ब्लॉक से, राइट? मतलब यूएस एंड अलाइज से, तो ये गलत है स्टेटमेंट पक्का. The BRICS member countries represent at least 40% of the global population, absolutely right. और साथ में फोर्थ वाला एक्रोनिम ऑफ आप कह सकते हो एक्रोनिम फॉर ब्रिक was given in the year 2001 by Jim O'Neill, absolutely right. So the right answer here is option C. Not incorrect मतलब क्या हुआ? True पूछा है हमसे, so the right answer is option C. चलिए 67th question, India recently hosted conference in New Delhi. बताइए, which of the following is the only country to have permanent guest invitee status at G20? 100 बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है in various sessions. Right answer of course आप सभी को पता है is Spain. Alright, next question, balance of payment का क्या मतलब है? Balance of payment का क्या मतलब होता है दोस्तों? बड़ा ही आसान है. देखिए आप just look at the options. ठीक है, यहां पे आपको हिंट भी दिया है क्वेश्चन में. चेंज इन एक्सचेंज रेट लीड्स टू अ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट एंड डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट. दिस आल्सो लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सामने दिख रहा है, क्या मतलब है इसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री, ये देख सकते हैं आप, कंट्रीज ट्रेड विद अदर नेशंस. ये तो ऑब्वियसली सही लग रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द मनी अ कंट्री ओज. ओज का तो कोई शब्द ही नहीं है भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में. Balance of payment is the money owed to cut. हटाओ इसको. The only viable option here is option A. That's the right answer. Pretty sure आप लोगों ने सही जवाब दिया भी है कि नहीं? चलिए. Alright, next question. अब गेमिंग इंडस्ट्री से है. देखिए आप, the gaming industry witnessed a largest acquisition in recent history. हम सबने सुना था माइक्रोसॉफ्ट ने जब इसको अक्वायर किया, राइट, एक्टिविजन को, बहुत चर्चा हुई. द राइट आंसर ऑफ कोर्स 69th क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, राइट? ए इज द राइट आंसर. ऑलराइट, 70th क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, आप सबको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछ लिया हमसे. 70th क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन C, right? 70 question, the right answer is Polar Satellite Launch Vehicle, right? Polar Satellite Launch Vehicle. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 71st क्वेश्चन हमारे सामने. Which of the following global company is not led by a CEO of Indian origin? दोस्तों अगर हम CEO of Indian origin की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं आपको, स्टारबक्स के CEO कौन है जी? इंडियन है. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. स्टारबक्स के सीईओ कौन है? इंडियन है. इसके साथ ही इफ यू टॉक अबाउट द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अगेन वी आर ऑल अवेयर, इंडियन, राइट? ये आप देख सकते हैं परफ्यूम ब्रांड है जी, इसको शनेल कहते हैं, राइट? शनेल. और भी फैशन कंपनी, रादर फैशन कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, राइट? इसका मतलब बैग्स हो गया, एसेसरीज हो गए, काफी चीजें, और ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस तो है ही शनेल की, काफी फेमस. सो दिस इज अ फ्रेंच लग्जरी कंपनी. बट मजे की बात क्या है दोस्तों, इसके सीईओ जो है अगेन इज एन इंडियन, राइट? तो लीना नायर इज द सीईओ ऑफ शनेल, राइट, सिंस जनवरी 2022, राइट? तो जनवरी 2022 से वो है. अब रेडबुल के कौन है हमें अगर पता भी नहीं है, तो हमें ये तीन का भी पता है, तो हमें पता है डी ऑफ कोर्स हैज टू बी द रॉन्ग आंसर, मतलब ऑड वन आउट. या
सो यस, रेड बुल के जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो अभी तक कितने सही हो रहे हैं भाई आप लोगों के, जरा ये भी तो बताइए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गाइस गॉट राइट? आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, ये भी जरा बताइएगा। चलिए सर, इज क्लैट रिजल्ट पब्लिश्ड? बेटा क्लैट का रिजल्ट आ जाएगा यार अभी, अगर आया होता तो अभी तो ठीक है, आप लोग सब यहाँ नहीं होते ऑब्वियसली। सो चलो आप कह रहे हो तो मैं भी कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ एक बार, आप लोगों की खुशी के लिए, क्लैट के रिजल्ट देखने के लिए। ये रहा जी क्लैट का रिजल्ट, क्लैट का रिजल्ट आ तो चुका है। एक बार डाल के देख लेते हैं जी, एडमिट कार्ड डिटेल्स आप सबकी खुशी के लिए, ठीक है। अभी तो बेटा ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, मतलब टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी अभी नहीं आया, अभी तो टाइम लगेगा। 19 और 20 आए कबीर, वेल डन बडी, गुड जॉब यार। ये हुई ना बात, देख इसीलिए तो मैं कह रहा था इजी है। 24-25 में आराम से मान के चल रहा हूं। आरबीआई having regard to the needs of securing monetary stability in the country prescribes cash reserve ratio। हर बैंक को अपने पास कुछ लिक्विड कैश रखना चाहिए और कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई तो आरबीआई को जिम्मेदार तो ठहराया जा सके, आरबीआई भी कुछ तो लेंडर्स को दे सके, और हर कोई बैंक खोल के ना बैठ जाए, राइट। ये सब चीजों की वजह से ये कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है। ये डिसाइड कौन करता है कैश रिजर्व रेशियो? अगेन आरबीआई करती है। तो चलिए लेट्स लुक एट द ऑप्शंस या, और देखते हैं क्या है जी सही जवाब फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट, okay, so percentage of bank's total deposit that is required to maintain either in cash or as deposits with the RBI। देखिए अब मेरा तो आगे पढ़ने का मन भी नहीं है क्योंकि इतना सही आंसर मिल चुका है यहाँ पे, पर फिर भी पढ़ना चाहिए just to be sure। minimum rate at which RBI lends funds to commercial bank, this is wrong। minimum percentage of net profit to cash flow, na। maximum percentage of deposits that can be extended as loans, na। the right answer of course 72A is the right answer। Alright, which author made history by becoming the first Indian non-expat to win the Booker Prize? Non-expat का क्या मतलब है दोस्तों? Someone who is a citizen of India, जो Indian citizen है, right? So Indian citizen इसमें आप सभी को पता है अरुंधति रॉय is the right answer। The book was God of Small Things। Now I am again very happy to tell you that this has been discussed in our weekly quizzes that we conduct for you in the crash course also which we conducted। हमने वहां पे भी ये डिस्कस किया हुआ है, तो आपका ये भी आई एम श्योर सही रहा होगा, ठीक है। चलिए ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Who among the following is not a recipient of a Nobel Prize? इनमें से नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला है? मदर टेरेसा को मिला है, अपन सबको पता है। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, और महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं तो उनको नहीं मिला कभी, नेवर रिसीव्ड नोबेल प्राइज, ठीक है। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। कितना आसान है, गांधी जी को कभी नोबेल प्राइज हमने, आप आई एम श्योर आप सबको पता है, कभी आपने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। सो मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड, राइट, कभी नहीं सुना, तो ऑब्वियसली ऑड वन आउट हियर, द राइट आंसर ऑप्शन डी। Alright, pick the incorrect combination। दोस्तों न्यू हॉरिजॉन्स वाज अ मिशन टू प्लूटो, एब्सोल्युटली राइट है। जूनो जुपिटर जो है ये भी राइट है, जूनो मिशन आप सबको पता होगा इसके बारे में। कैसिनी जो मिशन था सैटर्न का, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। सन का जो मिशन है उसका नाम आदित्य L1 है भाई, इग्निस नाम का कोई मिशन है नहीं। 75th क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर, राइट, डी इज द ऑड वन आउट या इज द राइट आंसर। 75th क्वेश्चन, डी सही जवाब यहां पे। Alright, moving on to the next quickly. Here we go. Okay, which international agreement remain central in efforts to enable a permanent solution to the geographical or rather geopolitical tensions between Russia and Ukraine? 76th question, the right answer obviously ये न्यूज में था, ये recent जो tensions है रशिया यूक्रेन के बीच में, वहां पे हमने डिटेल में YouTube सेशंस में कवर भी कर रखा है।
क्लासेस में तो ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है. राइट आंसर इज द मिन्स्क अग्रीमेंट. राइट, सो मिन्स्क अग्रीमेंट इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए. The world's tallest statue and ode to Sardar Vallabhbhai Patel, situated in Kevadia, Gujarat, is also known as, काफी आसान क्वेश्चन, Statue of Unity. राइट, तो Statue of Unity आई एम श्योर आप में से कई लोग गए हुए भी हैं, मैं भी गया हुआ हूं, बड़ा मजा आया था. ठीक है, आप लोग भी अगर नहीं गए हुए हो तो जरूर चले जाना. राइट, ऑलराइट, चलिए. तो Statue of Unity, केवड़िया. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कवच सिस्टम क्लासेस में डिटेल में बताया इसको, YouTube पे हमने डिटेल में किया हुआ है. लॉट्स ऑफ टाइम दिस हैज बीन आस्क्ड इन द मॉक्स एज वेल, सो वेरी इजी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. कवच का फुल फॉर्म भी हमने किया था, बताइए जरा क्या है जी आंसर. द राइट आंसर, सबसे पहले देखिए, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम. एब्सोल्युटली राइट है. सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेवलप्ड बाय DRDO यूज्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसी. रॉन्ग. कॉन्टेस्ट ये देख सकते, कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ना. इंडिजिनियसली डेवलप्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम. द आंसर इज ए. ये आपको याद होगा हमने किया था डिस्कस इन डिटेल जब हम कर रहे थे ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी. वी डिस्कस्ड कवच सिस्टम इन डिटेल इन द क्लासेस वेयर वी टॉक्ड अबाउट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम दैट इफ इवन इफ द ड्राइवर इज स्लीपी, राइट, इफ इज स्लीपिंग, राइट, देयर विल बी एन मतलब आप कह सकते हो इंटेलिजेंस होगा. ये कवच सिस्टम जो होगा, इट्स सो इंटेलिजेंट दैट इट विल डिटेक्ट एन इनकमिंग ट्रेन, हाउ फार इट इज, एंड अप्लाई द ब्रेक्स. प्लस इट विल ऑल्सो इन्फॉर्म the other people concerned, department, everyone, they will be on alert that yes, someone is approaching this particular train. So Kavach is the system to protect these trains. चलिए, ठीक है जी, काफी आसान. 78th क्वेश्चन किया हुआ भी है हमने. The Five Eyes Alliance is a global intelligence network pooling resources, sharing sensitive information to collectively secure peace and combat global threat. Peace and combat global threat. Now, अब काफी आसान क्वेश्चन. 5 जो फाइव आइज अलायंस है उनमें कौन कौन सी कंट्री है? तो दोस्तों यस, हम सबको पता है यूएस तो है ही है, यूके भी है. ठीक है, तो यूएस है, यूके सब में कॉमन चल रहा है. ठीक है, कनाडा भी है, बिल्कुल कनाडा कहीं सिर्फ ऑप्शन डी में है. चलिए, ये तो काफी आसान हो गया हमारे लिए. राइट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है. तो सी जो था सबसे करीब था डी के, बट वहां पे कनाडा मेंशन नहीं है. द राइट आंसर इज ऑप्शन, आप देख सकते हो 79 का ऑप्शन डी. राइट, इट इज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. राइट, आप लोगों ने भी यही मार्क किया है अभी तक, तो वेरी गुड स्वप्निल. चलिए, ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन. G20 समिट की अगर हम बात करें, इन इंडिया brought together leaders from the world's major economies to address pressing global issues. India used this platform to underscore its commitment to fostering global growth and stability. Which of the following areas was not a focus of the summit? अब दोस्तों इसमें ना मेरे को तो 3-4 चीजें लग रही है. अब देखिए, सबसे पहले तो G20 समिट जो थी, together leaders from the world's major economies to address pressing global issues, बिल्कुल ठीक है. India's which of the following areas was not a focus of G20 summit? G20 summit का फोकस कौन सा नहीं था? अब अगर देखें हम ऑप्शन ए, तो मैनेजिंग ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटीज, इसके ऊपर भी जो है दोस्तों जो है सेशन हुआ है. राइट, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इसके ऊपर भी जो है देयर हैज बीन अ सेशन ऑन G20. ऑप्शन सी के ऊपर भी हुआ है, ऑप्शन डी के ऊपर भी हुआ है. तो बड़ा ही यहाँ पे थोड़ा पेचीदा सा मामला है. राइट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है so if you look at this, eliminating hunger and malnutrition, no doubt, bridging the gender digital divide, थोड़ा सा वही वाली बात है कि यार यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में थोड़े से डाउट्स जरूर आ सकते हैं. तो 80th क्वेश्चन जो है दोस्तों, द राइट आंसर इज फ्रॉम अस, टेक इट एज डी. आप लोगों ने क्या मार्क किया है जरा मुझे बताना. बट प्राइमा फेसाई व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड एट द क्वेश्चन, ए लुक्ड लाइक द करेक्ट आंसर. राइट, तो
इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट्स जो है जरूर है। आप मुझे बताइए आप लोगों ने क्या मार्क किया है 80th क्वेश्चन का आंसर। व्हाट हैव यू गाइस मार्क्ड फॉर द 80th क्वेश्चन? क्या मार्क किया आप लोगों ने? झलक ने डी किया, देवश्री ने ए किया, कबीर ने ए किया, स्वप्न ने डी किया, सबने अलग अलग किया है। ए और डी में डिवाइड है यहां पे भी, या वो पुराने क्वेश्चंस के आंसर हैं? चलिए आप लोग अपना आंसर बताइएगा 80th क्वेश्चन का। व्हाट हैव यू गाइस मार्क्ड हियर, राइट? ऑब्वियसली वील वेट फॉर द ऑफिशियल एलेट आंसर की, राइट? एलेट की आंसर की का वेट करेंगे। यशिका ने डी मार्क किया है। ऑलराइट, चलिए गुड, बढ़िया है। तो दोस्तों यही है जीके का सेक्शन। हमने देखा 30 क्वेश्चंस हमने आज यहां पे किए हैं, राइट? वेरी गुड त्रिशा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपने वो आंसर किया था। ऑलराइट, गुड गुड गुड। चलो, तो 30 क्वेश्चंस हो गए यहां पे। अगर हम देख रहे हैं 30 क्वेश्चंस में, तो हमारा स्कोर आराम से जीके में अगर हम बात करें तो आप इजीली थ्रू शेयर एलिमिनेशन कॉमन सेंस, राइट, 22 प्लस तो आप आराम से लेके आ सकते हो। 24 अगर आपका स्कोर है, यू आर डेफिनेटली इन दी ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी रादर, राइट? 24 प्लस है तो ए प्लस हो आप खुद भी, ठीक है? अगर आपका स्कोर जो है वो है 22 to 24, राइट? 22 से 24 है अगर आपका स्कोर, तो फिर मैं कह दूंगा चलो ए, राइट? उससे नीचे तो एक्चुअली सच बताऊं होना भी नहीं चाहिए, राइट? 22 से नीचे, क्योंकि लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट देयर वर, राइट? तो ये ए हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, चलिए 20 से 22 ले लो आप बी कैटेगरी, 18 से 20 ले लो आप सी। उससे नीचे अगर स्कोर है तो यार थोड़ी दिक्कत है, फिर बाकी सेक्शंस में हमें हेल्प चाहिएगी, राइट? विल नीड हेल्प इन द अदर सेक्शंस, राइट? चलिए, चलो, ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस फॉर यू गाइस फॉर एलेट। अब हम मिलेंगे अगले सेक्शन में, राइट? अल्पा मैम विल बी लाइव विद इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो चलिए तुरंत प्रभाव से शुरू करते हैं, राइट?